Hello and welcome back to our PYQ analysis series. So thank you for your response. हमें जो पहले वीडियो शूट किए, हमने जो पहले लाइव सेशंस लिए हैं, उसके रिस्पॉन्स के लिए we are really thankful. So due to that, now today we are starting with our first chapter of organic chemistry. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें पता है कितना डिफिकल्ट लगता है, बट एक्चुअल में उतना डिफिकल्ट है नहीं. सब बोलते हैं ऑर्गेनिक, ओ मुझे नहीं आता, ऑर्गेनिक अरे नहीं आता, रिएक्शन कैसे करते हैं, व्हाट इज नॉमेनक्लेचर नहीं पता. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर सबको रहता है. सो आज हम वो डर को खत्म कर देंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टुडे एंड उसमें वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आज फर्स्ट ऑर्गेनिक का सेशन है. सो हम एकदम बेसिक ऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे कि लेट्स सी what questions come from your basic organic chemistry and थोड़े थोड़े करके in the next sessions we will go to advanced organic chemistry. So today we are going to cover general organic chemistry जिसमें हम basic cover करेंगे और उस basic के according कौन से important PYQ यानी कि last year questions आ चुके हैं हम उसको tackle करेंगे. Okay, so चलो let us start with our PYQ analysis and with this hit the like button, subscribe करिए और आपके फ्रेंड्स को भी 4 मार्क्स मिलने चाहिए तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट ऑर्गेनिक सेशन, दैट इज सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो लेट अस सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन. आवर फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी of functional groups in naming an organic compound as per IUPAC nomenclature is. Now this is asked, ये पूछा है आपको JEE 2022 में 26 जुलाई शिफ्ट 2. Now either students they have not asked you any name, they have asked you if you have multiple functional group तो वो functional group का priority क्या है, how do you name a functional group or how do you name a compound where you have a multiple functional group. So when you have multiple functional group we have a priority order. हमारे पास एक priority order है और उस priority order से we name any functional group या any compound. So either we have to check what is our priority order. Now the king of order, the first, the topmost is always a carboxylic acid. But ये JEE है, इतना easy तो देंगे नहीं. So they have smartly given carboxylic acid as the first in your option A and option C. So in option A and option C they have smartly उन्होंने दे दिया कि ओके आपको ये आइडिया है कि एसिड सबसे पहले, सो आप वो ही दो ऑप्शन पे देखोगे, बट नहीं, दे आर वेरी स्मार्ट. उन्होंने ये नहीं बोला है कि टॉप टू बॉटम बताओ. ओके, दे हैव जस्ट जिधर भी एसिड टॉप पे है ना, दे हैव जस्ट पुट रैंडमली एनी नॉमेनक्लेचर एनी फंक्शनल ग्रुप उन्होंने रैंडमली डाल दिए. सो लेट अस सी. सो द फर्स्ट इज किंग योर कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट वी नो. सो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर हमेशा हमेशा is your carboxylic acid, that we know, correct. And second, what is the second after carboxylic acid students? The second is your sulfonic acid group, that is your SO3H. now अभी आप देखो ऑप्शन A में और ऑप्शन C में क्या सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, नहीं है. okay, so after sulfonic acid please remember you have something called as acid chloride. okay, so this is acid chloride COCl. so if you have COOH, okay, उसके बाद you have SO3H और उसके बाद you have COCl. so अगर आप देखो ऑप्शन A में COH है, ऑप्शन D में COH है, okay, then ऑप्शन B में SO3H से स्टार्ट हो रहा है, so वो भी करेक्ट रह सकता है. then after SO3H COCl, फिलहाल ऑप्शन B ज्यादा करेक्ट लग रहा है. let us go to the next. after COCl स्टूडेंट्स याद रखो आपका फंक्शनल ग्रुप है अमाइड. so you have CONH2 which is amide. so अभी CONH2 which is your amide किधर है ये ऑप्शन स्टूडेंट्स, look at the option B. okay, smartly उन्होंने क्या दिया है, ऑप्शन A में you have CONH2 first and COCl afterwards, but नहीं, although acid king है but your acid chloride comes first before your amide. amide बाद में आता है, acid chloride first आता है. so option A eliminated. then if you look at option D, option D में उन्होंने वापस एस्टर पहले दिया है. नो, एस्टर नहीं आता है पहले, एलिमिनेट. एंड ऑप्शन C तो ऐसे भी एलिमिनेट हो गया, एस्टर पहले आ गया ड्यू टू, यस एस्टर पहले आ गया किससे, योर एसिड क्लोराइड से. सो इवन ऑप्शन C इज एलिमिनेटेड. सो स्टूडेंट्स इधर करेक्ट आंसर कौन सा है, yes it is nothing but option B. so you have sulfonic acid first, then you have acid chloride, then you have amide और उसके बाद आता है हमारा नाइट्राइल.
So students, you have to be very careful while attempting your IUPAC nomenclature questions. अभी हम और questions देखेंगे IUPAC nomenclature के, but you have to be very very careful. So this is your JEE 2022 question और ऐसे similar question वापस आ सकते हैं. Now let us go to our next question. चलो देखते हैं what is our next question. So next question is again your JEE 2022 June 28 shift 2. अभी इसमें उन्होंने सीधा IUPAC नॉमेनक्लेचर पूछा है कि व्हाट इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द गिवन कंपाउंड एंड जस्ट ना हमने डिस्कस किया योर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप. स्टूडेंट्स एक बात दिमाग में डाल लो, इफ दे आर गोइंग टू आस्क यू IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑलवेज एंड ऑलवेज इट विल बी मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप. सिंगल फंक्शनल ग्रुप जैसे यू नो एल्डिहाइड कीटोनिक सिंगल फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा. इतना इजी क्वेश्चन 2023 2024 कभी नहीं पूछा है, ना कभी पूछेंगे. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आपको प्लीज आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद करके ही जाना है. विदाउट प्रायोरिटी ऑर्डर आपको नहीं एग्जाम में जाना है. IUPAC नॉमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर पक्का 100% पेपर में है. सो ओवर हियर चलो देखते हैं क्वेश्चन. व्हाट इज आवर क्वेश्चन? आई ड्रॉ दैट कंपाउंड वंस अगेन. व्हाट वी हैव NO2 over here. Okay, then we have another carbon, then we have a double bond. Okay, उधर ऊपर एक मिथाइल है. then we have another carbon over here, we have a double bond. Okay, fine. इधर हमारा और एक कार्बन double bond और we have H. So what are our multiple functional groups students over here? Come on in the chat box comment करो. क्या मेरे पास 2 है, 3 है, 4 है? कितने functional group है इधर? Yes, apart from your alkanes हमारे पास कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है? इज इट 1, इज इट 2, इज इट 3, इज इट 4? यस स्टूडेंट्स, इन द चैट बॉक्स कमेंट सेक्शन में अब भी क्या अभी लिख दो. यस, करेक्ट. सो इधर हमारे पास वी हैव अ एल्डिहाइड 1, वी हैव अ कीटोन 2, वी हैव अ अल्कीन एंड वी हैव अ नाइट्रो ग्रुप. सो टोटल वी हैव 4 फंक्शनल ग्रुप ओवर हियर. ओके, सो अभी इसका नाम कैसे लिखना है? सो द फर्स्ट रूल इज यू हैव टू स्टार्ट विद द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन. और वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिधर से योर मेन फंक्शनल ग्रुप इज नियर बाय. सो द मेन फंक्शनल ग्रुप इधर है एल्डिहाइड. ओके, सो प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड पहले आता है. सो आई विल नेम द एल्डिहाइड और आई विल नंबर द एल्डिहाइड सबसे फर्स्ट. सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 और 7. सो आई हैव 7 कार्बन. सो 7 कार्बन मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली. डन. अभी देखो 7 कार्बन क्या सब ऑप्शन में है? 7 कार्बन मीन्स व्हाट? यस, 1 इज मीथेन, 2 इज इथेन, 3 इज प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन. क्या हेप्टेन आपके हर एक ऑप्शन में है? लेट अस सी. ओके, फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, बट लुक एट द फोर्थ ऑप्शन, हेक्स एलिमिनेटेड. इधर गया अपना हेक्स. वी हैव हेप्ट, वी नो. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट कार्बन पे क्या है? अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है? सफिक्स इज Al. ओके, सो हर एक जगह ओके दे हैव गिवन Al, बट लुक एट द डबल बॉन्ड पोजीशन. डबल बॉन्ड किसके बीच में स्टूडेंट्स? यस, इट इज बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन. सो फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. सो वही नाम आएगा जिधर 4 in al रहेगा. ओके, वेयर इट विल बी 4 in al. So let us look at the option. Okay, we have got our answer here only. हमें बाकी कुछ देखना ही नहीं पड़ा. So over here, option A is eliminated. Option B is also eliminated. But option C, okay, 4 in all. बाकी let us verify if everything is correct or no. So over third carbon we have a keto group. Now keto group का prefix लगेगा. Prefix क्या है keto group का? Remember, it is oxo. So it should be 3 oxo. Okay, it is 3 oxo. Okay, then we have a nitro group. कौन से कार्बन पे? 6 कार्बन पे. Okay, so let us check. Yes, nitro group भी है. Perfect. Then we have one methyl group over here on the 4th carbon. So yes, methyl group भी है. और एक रूल है इधर स्टूडेंट्स, योर अल्फाबेटिक ऑर्डर. Yes, so M methyl first, then N nitro, then O oxo. So yes, it is following our alphabetic rule also. So the correct answer to this question students is nothing but option C. और ऐसे ही आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर अटेंड करने हैं. यस, IUPAC नॉमेनक्लेचर का प्रायोरिटी देखो. इफ यू करेक्टली सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन,
50% ऑफ काम उधर ही हो जाता है दैट ओके मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन करेक्ट है, आई हैव गॉट द करेक्ट आंसर, सिंपल। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, अगर समझ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स इज फ्रॉम योर JEE 2021। So the question is, in the following molecules, hybridization of carbon A, carbon B and carbon C respectively. अभी आपको इधर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन ढूंढने हैं। Now how to search for hybridization? एक सिंपल ट्रिक है, और अगेन ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो चुका है कि ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। सिंपल लॉजिक है, सिंपल क्वेश्चन है, आई विल टेल यू द करेक्ट लॉजिक। सो क्या देखना है आपको? आपको देखना है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बस आपका आंसर यही सॉल्व हो गया। सो आपको देखना है सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर जो कार्बन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कार्बन को अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा, सो वी विल कॉल इट एज sp3। अगर वो कार्बन को सिंगल बॉन्ड के अलावा इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड स्टूडेंट्स, सो अगर वो कार्बन को डबल बॉन्ड रहेगा, राइट में रहने दो, लेफ्ट में रहने दो, टॉप पे रहने दो, बॉटम पे रहने दो, डजंट मैटर, if it contains a double bond, that carbon is sp2 hybridized। Similarly students, अगर वो कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, अगेन द सेम, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, सेंटर, किधर भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वो कार्बन बन जाएगा sp3 hybridized। So come on, identify। Now I have made you understand, मैंने आपको समझाया कि sp, sp2, sp3 कैसे रहता है। Now it is your time। स्ट्रक्चर को देखो और मुझे बताओ कौन सा करेक्ट आंसर आएगा। कम ऑन, आई वांट द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। यस स्टूडेंट्स, क्या करेक्ट आंसर आएगा? या सो वन बाय वन देखे। सो कार्बन ए को अगर आप देखोगे और मैं ओपन कर दूं उसको, कार्बन ए, तो 3 सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन के बाद, 1 सिंगल बॉन्ड है कार्बन के पास। सो स्टूडेंट्स, ए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रहेगा? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सो ए सिंगल बॉन्ड, यस करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सो ए का हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। हमें सॉल्व भी नहीं करना चाहिए था क्योंकि चारों ऑप्शन में देयर इज sp3। उनको भी पता है कि आपको ये ट्रिक पता है। ओके, सो चारों ऑप्शन में है sp3, सो इग्नोर ए। देन बी अगर आप देखो, सो स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम अ सिंगल बॉन्ड वो कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है, एंड एज आई टोल्ड यू अगर डबल बॉन्ड आएगा तो क्या रहेगा? It is sp2। So A is our sp3, okay, B carbon is our sp2 and C carbon students वापस क्या उधर ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। So C carbon भी आएगा sp2। So sp3, sp2, sp2 carbon। So students, correct answer is perfect। So we have option C as the correct answer because sp3, sp2, sp2। I hope students इट इज ईजी नाउ कि आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे करना है समझ गया हो। यस, अभी कोई भी दुनिया का स्ट्रक्चर आने दो, आपको बस देखना है कि कार्बन को सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इफ देयर इज ऑल सिंगल बॉन्ड, सिंपली sp3, अगर डबल बॉन्ड आया सो सिंपली sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया sp। डन। इससे इजी कोई बात हो सकती है? सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फियर ऐसे ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, एक सिंपल ट्रिक देख लोगे, it is very easy। okay, so चलो students, let us move to our next question। देखते हैं अभी next question क्या है। now again if you look at our next question, match the following। match the following पूछने में उन लोग को बहुत मजा आता है because match the following में they can ask you 3-4 different type of concepts। so now this is your JEE 2023। so even organic chemistry में आप assume करके चलिए एक match the following तो जरूर आएगा। it can be a reaction, it can be isomer जैसा इधर पूछा है, और it can be anything, but एक match the following जरूर आएगा। so let us look at our question। so choose the correct answer from the options given below। so आपके left side में they have given the isomeric pairs। okay, उन्होंने compound के IUPAC नाम दिए हैं and उनके pair दिए हैं। on the right hand side they have given types of isomers। so you have to identify कि आपके isomers कौन से हैं and कौन सा type का isomers है। simple। now if you look at the option, एज आई टोल्ड यू, जब भी ये 4 ऑप्शन ऐसे आएंगे ना, यू हैव टू बी अ चूजी। यू हैव टू सी कि आपको लीस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े। अभी जैसे इफ आई चूज ऑप्शन बी अगर मैं सॉल्व करूं, ओके, ऑप्शन बी अगर मैं सॉल्व करूं, सो ऑप्शन बी अगर मैंने सॉल्व किया, 2 क्वेश्चन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। सो पहले चलो ऑप्शन बी सॉल्व करते हैं। दैट इज
hex 2-one and hex 3-one. अभी on is what students? It is nothing but a ketone. So hex 2-one, hex मतलब 6 कार्बन. So let me draw a 6 कार्बन and 2-one मतलब student second कार्बन पे we have a keto group. So we have CH3, CH2, okay, CH2, okay, then we are having one more CH2, fine, then C double bond O, CH3. ये क्या हुआ students? You have 6 carbon and second carbon पे you have a keto group. So first and second carbon पे you have a keto group. That's why we call it as hex 2-one. Simple as that. Now next compound student, उसके पैर अगर हम देखें तो hexane 3-one. So 3-one मतलब क्या रहेगा students? We have a keto group at the third carbon. We have a keto group at the third carbon. So if I draw it students, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, okay. So I'll draw C double bond O over here, CH2, CH3. So if you notice from the right hand side, अगर मैं उसको numbering दूं students, so 1, 2, 3. So students, we have two equal halves divided due to our ketone group. हमारा ketone जो carbonyl group है उसके वजह से two equal part divided है. So ऐसे isomers where you have just एक keto group है and you have both of the side equal, yes, equal molecules, so उसे क्या बोलते हैं students? That is nothing but your मेटामर्स. सो मेटामर्स इधर कार्बोनिल ग्रुप दिखा सकता है और ईथर ग्रुप दिखा सकता है, बिकॉज ओवर देयर ऑल्सो यू कैन डिवाइड ROR. आपका अमाइन भी दिखा सकता है RNHR. यस स्टूडेंट्स, सो दैट इज योर मेटामर्स. सो इफ आई सी B शुड बी 1. नाउ चेक एट द ऑप्शंस. आपको अगर सही आंसर मिल रहा है, प्लीज डू नॉट गो अहेड एंड सॉल्व एवरीथिंग. चेक B1, सी B1 एक ही ऑप्शन में है. सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट. आपको टाइम बचाना है. एंड अगेन, आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके जाते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपका अच्छा है, सो आपका टाइम बहुत बचेगा. दैट टाइम यू कैन यूटिलाइज इट फॉर योर, यस, फिजिक्स और मैथ्स में काम आ जाएगा वो. सो यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट. यू हैव टू बी चूजी एंड करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. सो ओवर हियर योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. बाकी को देखना ही नहीं है. वी हैव गॉट आवर ऑप्शन. हमने क्विकली ये आंसर निकाल लिया. Now let us go to our next question students. Now the next question says which of the following pairs, again metamerism, again metamerism. अभी ये JEE 2021 का क्वेश्चन है. Now students, as I told you, metamerism के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि दो इक्वल या दो हाफ में चीजों को डिवाइड करना. So if you look over here, किधर दिख रहा है मुझे? If you see, this is exactly repeated question. Yes students, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास हेक्सेन था. इधर, yes स्टूडेंट्स, इधर क्या है? इधर हेप्टेन है, बट एग्जैक्टली सेम है. सो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंसी ऑफ दिस क्वेश्चन. बहुत इंपॉर्टेंट है. सो JEE 2021 में भी पूछा था, 23 में भी पूछा है. यू डू नॉट नो 24 में भी आ जाए. सो प्लीज आइसोमेरिज्म को सही से करके जाओ. वेरी इजी कंसेप्ट और 4 मार्क्स आपके जेब में. सो दिस इज योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. बाकी को देखना ही नहीं है. सो इफ यू नो द कंसेप्ट, यू कैन सी आई एम सॉल्विंग क्वेश्चंस 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर रहा हूं मैं. सो सिमिलरली आई एक्सपेक्ट आप भी ये 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करोगे. सो अगर आपको समझ रहा है, यू नो द ड्रिल, कम ऑन, लाइक बटन दबाओ एंड आपके फ्रेंड्स लोग को भी 4 मार्क्स दे दो. ओके, सो शेयर करो इसको. So next question students, what is our next question? The decreasing order of hydride affinity for following carbonation and choose the correct answer from the options given below. Okay, so students, इधर आपको choose करना है कि कार्बोकैटायन का हाइड्राइड के तरफ affinity. Now hydride is what students? Hydride is nothing but H minus. So you have to select कि आपका H minus का affinity कौन से कार्बोकैटायन पे ज्यादा रहेगा. Now simple, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा, उधर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, डीलोकलाइज्ड है, तो वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा. सो दिस इज ऑपोजिट. जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, डीलोकलाइज नहीं है, उधर वो आंसर करेक्ट रहेगा. उधर H माइनस इजीली जाके अटैक करेगा. देखो सिंपल लॉजिक है. यू हैव अ नेगेटिव स्पीशीज, यू हैव अ पॉजिटिव स्पीशीज. जितना ज्यादा पॉजिटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव को उतना पसंद आएगा. सो सेम ओवर हियर, यू हैव टू सी कौन सबसे ज्यादा पॉजिटिव है.
सो इफ यू हैव टू मच ऑफ डीलोकलाइजेशन, वो आंसर नहीं रहेगा. सो स्टूडेंट्स, इफ यू नोटिस सी में कुछ डीलोकलाइजेशन है ही नहीं. ओके, इधर बेंजीन है, इधर तुम्हारा डबल बॉन्ड है, इधर रिंग्स है. सो ऑब्वियसली सी शुड कम फर्स्ट. ओके, देन इफ आई चूज, ओके इधर डबल बॉन्ड है. ओके, then we have a phenyl group. Okay, then we have the rings. So here rings में भी according to me there should be a double bond. Okay, so over here the correct answer students, again JEE 2023 simple question, आपके simple questions पूछे जाते हैं. So you have to be, yes, concept ठीक से करके जाओ, you will get the correct answer. So C A B D, your option A is the correct answer. Now students, let us go to the next question. Now the next question says, which of the following compound does not exhibit resonance? JEE 2021 का question, 22nd July shift 2. Now either students you have to identify कि आपका कौन सा कंपाउंड रेजोनेंस नहीं दिखा रहा. सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं है. रेजोनेंस कौन दिखाता है? जब यू हैव अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड. सो आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज ऐसे कुछ रहेगा तो ही रेजोनेंस दिखाएगा. सो यू हैव टू सी किधर रेजोनेंस नहीं दिखा रहा. नाउ इफ आई आइडेंटिफाई, ओके बी में तो रिंग है, डबल बॉन्ड है, उधर रेजोनेंस तो जरूर आएगा. देन इफ यू लुक एट द ऑप्शन सी, यू हैव CONH2. सो इधर भी लोन पेयर्स है. ओके, सो ये भी रेजोनेंस में जा सकता है. फाइन. इधर भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये भी रेजोनेंस में जा सकता है. फाइन. बट इफ यू लुक एट ऑप्शन डी, अगर मैं ऑप्शन डी को ओपन करूं, यस देयर इज अ डबल बॉन्ड. ओके, बट उस डबल बॉन्ड के बाद यू हैव अ CH2 और उसके बाद NH2 है. सो स्टूडेंट्स, क्या ऐसे कंपाउंड रेजोनेंस में जा सकते हैं? ओके, ये इधर मूव हो गया, बट क्या ये मूव हो सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. वो मूव हो गया तो योर कंपाउंड ओनली विल ब्रेक, डिसोसिएट हो जाएगा. बट यस, ऑब्वियसली इट वोंट हैपन, इट इज नॉट पॉसिबल. हाइपोथेटिकली करे तो भी नहीं होगा. सो यस, द करेक्ट आंसर इधर कौन से मॉलिक्यूल में यस रेजोनेंस नहीं होगा बच्चों? It would be option D, because there is no continuous single and double bond. Simple as that. So ऐसे ही simple concepts है. You have to be stable. आप एग्जाम में एकदम स्टेबिलिटी से जाओ. जैसे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, वैसे आपके ब्रेन को भी स्टेबल रखो एंड इजीली आप आंसर चूज कर सकते हो. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट अस गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, लेट अस गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question again JEE 2023. देखो इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं. ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. यू हैव टू बी अटेंटिव. ठीक से आंसर करना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इजी है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ऑफ द फॉलोइंग इज. सो आपको डिफरेंट डिफरेंट कार्बोकैटायंस दिए हैं और पूछा है कि इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है. नाउ स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? प्लीज नोट दिस डाउन इन योर बुक. स्टेबिलिटी is directly proportional. लिख लो इसे बुक में. stability is directly proportional to your resonance. stability is directly proportional to your resonance. जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी. सिंपल, इससे सिंपल कुछ चीज हो नहीं सकती. सो इधर आपको बस देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है. दैट्स इट. सबसे ज्यादा रेजोनेंस, सबसे ज्यादा स्टेबल. सो उसके लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, योर चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन चाहिए हमें. दैट्स इट. सो इफ आई लुक एट द ऑप्शन 1, ओके, इधर अगर मैं नाइट्रोजन पे लोन पेयर डालूं, सो कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं होगा बाद में. ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर देते हैं. सिमिलरली इफ आई मूव दिस, नहीं, ये भी नहीं होगा. बट लुक एट द ऑप्शन सी. ओके, ऑप्शन सी में अलग से भी ड्रॉ करता हूं. सो सपोज आई हैव ऑप्शन सी. ओके, सो I have NH2 over here, okay, and I have a charge over here. So ये NH2 के जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन रेजोनेंस में आ सकते हैं. So this will move over here, this will move over here, this will move over here. Yes students, बहुत ही easy है. ये एक ही स्ट्रक्चर है जो इतना रेजोनेंस में जा रहा है. So as I told you, more the resonance, more the stability. Now इन्होंने इतना easy क्वेश्चन तो दे दिया, but they are again very smart. उन लोगों ने आपको ऑप्शन में कंफ्यूज कर दिया. ओके, सो इधर अपना ऑप्शन सी, योर स्ट्रक्चर सी इज करेक्ट, बट उन्होंने बी के सामने सी लिख दिया. सो आपने क्या, ओ स्ट्रक्चर सी इज करेक्ट, मैं सी आंसर करेक्ट कर दूंगा. नहीं, अगेन यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव. 100% फोकस आपका पेपर में होना चाहिए.
डजंट मैटर साइड में क्या हो रहा है, सामने क्या हो रहा है, यू शुड बी फोकस्ड 100% ऑन योर स्क्रीन. ओके, सो स्ट्रक्चर सी इज करेक्ट, बट वो स्ट्रक्चर सी है हमारे ऑप्शन बी में. सो द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. सो दिस इज योर JEE 2023 क्वेश्चन. रेजोनेंस सिंपल देखो, स्टेबिलिटी देखो, 4 मार्क्स लेके जाओ. इससे इजी क्वेश्चन आपको हो ही नहीं सकता. एंड ये ट्रेंड देखा गया है, रेजोनेंस का क्वेश्चन अगेन एक शिफ्ट में तो रिपीट होता ही होता है. सो एवरी ईयर एक रेजोनेंस का क्वेश्चन आता है. एंड ऐसे भी आपको ये कंसेप्ट करना चाहिए, बिकॉज हर एक मैकेनिज्म में वी हैव दिस कंसेप्ट. आपका हक्कल रूल हो गया, रेजोनेंस हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, आपको हर एक रिएक्शन में लगता है. सो हेंस यू शुड डू दिस कंसेप्ट. सो चलो लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन. वाओ, ऐसे कुछ बड़ा स्ट्रक्चर आ गया. हाँ, नहीं डरना नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन. सो JEE 2023 का क्वेश्चन है. सी, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका साइट ऑफ अटैक क्या रहेगा, किधर रिएक्शन हो रहा है. इफ यू आइडेंटिफाई दैट, आपका क्वेश्चन हो जाता है उधर ही फिनिश. ओके, सो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है. ओके, दे हैव डन द एसिड हाइड्रोलिसिस एंड दे हैव आस्क्ड द मेजर प्रोडक्ट. सो सिंपल स्टूडेंट्स, H प्लस, पहले तो आपके पास H प्लस है. H प्लस किधर जाएगा, एकदम सिंपल. H प्लस किसके पास जाएगा, जिधर नेगेटिव है. हमारे स्ट्रक्चर में नेगेटिव कहां पे है, योर OH इज नेगेटिव. ओके, सो इफ आई ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर, चलो मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूं. ओके, सो आई हैव अ रिंग ओवर हियर. बेंजीन नहीं है वो, यू हैव टू बी केयरफुल, इट इज अल्कीन. ओके, देन आई हैव अ मिथाइल ग्रुप ओवर हियर. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है हमारा. ओके, देन वी हैव अ क्रॉस ओवर देयर. क्रॉस है वो नहीं, वो कार्बन है. 1 2 and 3 carbon. Okay, so if you have H plus students, so H plus simply जिधर नेगेटिव है उधर H plus है. सिंपल एसिड H plus देगा आपको, उधर जाके H plus को डाल देना है. so किधर जाएगा H plus, on your lone pair. so I'll put H plus on OH. so ये हो गया OH2 plus. now OH2 plus एक लिविंग ग्रुप बन गया. so this will leave. किसको लेके निकल गया, इलेक्ट्रॉन्स को. so students क्या आ गया उधर. so if I draw that structure, okay, so क्या आ गया मेरा, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज. नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. पॉजिटिव चार्ज आया 99.9% टाइम्स, वो हमेशा हमेशा उन लोग उसको शिफ्ट जरूर करेंगे. यू हैव टू चेक एडजेसेंट पे, अगर वो टर्शरी बना सकता है तो यू हैव टू शिफ्ट. सो यू कैन सी एडजेसेंट कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज गया तो वो टर्शरी बनाएगा. सो I'll shift that to the adjacent carbon. so चलो इधर से मैं इरेज कर देता हूं एंड वो मैं बना देता हूं एडजेसेंट कार्बन पे. एंड ड्यू टू दैट स्टूडेंट्स, ड्यू टू दैट जैसे मैंने वो एडजेसेंट कार्बन पे बनाया, सो चलो स्टूडेंट्स मैं वो पॉजिटिव चार्ज इधर से इरेज कर देता हूं. तो ये कर दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज इरेज, और मैं बनाऊंगा उसको एडजेसेंट कार्बन पे. अभी एडजेसेंट कार्बन का एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा हमारे पॉजिटिव कार्बन पे. तो ये आ गया मिथाइल ग्रुप, उधर से मैंने इरेज कर दिया एक मिथाइल ग्रुप. सो उधर आ गया मेरा पॉजिटिव चार्ज. सो ये पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट्स आ गया हमारा टर्शियरी कार्बन पे. सिंपल. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमेशा ये मिथाइल शिफ्ट होता है. ओके, देन इफ यू नोटिस स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ रिंग भी है. सो चलो रिंग भी ड्रॉ कर लेता हूं मैं. हमारे पास यहाँ रिंग भी है. सो हमेशा हमेशा ये जरूर ट्राई करना कि हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगा. सो ABCD ऑप्शन में भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली. अभी कौन सा साइक्लिक रिंग होगा, सिंपल नंबर दे दो. ओके, सो वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज, वी हैव अ डबल बॉन्ड. सो चलो मैं नंबरिंग दे देता हूं 2 3 4 5 6. सो हमारा 6 मेंबर प्लस 6 मेंबर रिंग बनेगा, प्लस हमारा जो 6th कार्बन है उस पे ऊपर रहेंगे 2 मिथाइल ग्रुप. सिंपल. और हमारा जो 5th कार्बन है उस पे रहेगा एक मिथाइल ग्रुप. सो आपको ऑप्शन देखना है कौन से ऑप्शन में हमें 6 + 6 है और 6th कार्बन पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है. सिंपल स्टूडेंट, सिंपल. सो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो. देखो ऑक्सीजन तो बीच में आएगा नहीं, एलिमिनेट. ओके, ये भी एलिमिनेट, कुछ जम नहीं रहा है ये स्ट्रक्चर, सो एलिमिनेट. ओके, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया, 6 + 5 तो है ही नहीं. बट लुक एट द ऑप्शन सी. यस, 6 + 6 plus we have a 2 methyl group, we have a methyl group over here. Simple students. So जब आप बहुत सारा बड़ा स्ट्रक्चर देखते हो ना, उसको डरना नहीं है. यू हैव टू लुक कि रिएक्शन कौन से साइड पे हो रहा है. इफ यू आइडेंटिफाई ओके ये कार्बन पे मेरा रिएक्शन हो रहा है, डन, आपका क्वेश्चन उधर ही सॉल्व हो गया. सो इधर मेरा जैसे मैंने ये मूव कर दिया. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको हमेशा चेक करना है कार्बोकैटायन शिफ्ट होगा या नहीं. अगर टर्शरी कार्बोकैटायन का पॉसिबिलिटी है
100% ऑफ टाइम्स वो कार्बोकटायन टर्शरी बनेगा, इधर वो मिथाइल शिफ्ट करेगा या हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, बट टर्शरी कार्बोकटायन जरूर बनेगा। एंड 99% टाइम्स जेई आपको यस पॉजिटिव चार्ज मूव करने वाला ही क्वेश्चन देती है। सो ये कौन से भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, जरूर और जरूर मैकेनिज्म में टर्शरी कार्बोकटायन जरूर बनता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हो ऑर्गेनिक। सो दिस वाज अ जेई 2023 क्वेश्चन। ओके, सो आई होप हमने सब ऑर्गेनिक के छोटे छोटे रेजोनेंस के कंसेप्ट हो गए, छोटे छोटे मैकेनिज्म के कंसेप्ट हो गए, सब कवर कर लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके पीवाईक्यूज कवर कर लिए। सो अभी आपका काम है इसे रिवाइज करना एंड हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड ये 4 मार्क्स अगेन, एक वीडियो देखो 4 मार्क्स लेके जाओ, स्कीम चालू है। ओके, सो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो एंड डू नॉट फॉरगेट, आपको अगर कुछ भी डेमो चाहिए, आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो केमिस्ट्री में, आई एम शेयरिंग ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी के अभी जाओ एंड कॉन्टेक्ट अस। सो प्लीज बी विद अस। जैसे आप हमें दूसरे वीडियोस में सपोर्ट कर रहे हो, वैसे ही हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ऑन गोइंग सीरीज में सेम हम सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं। सो ज्वाइन अस फॉर अवर नेक्स्ट सेशन।